क्वेश्चन नंबर 31. So question number 31 क्या है? The surface overflow rate in rectangular sedimentation tank is 45 meter cube per meter square per day is given. The minimum diameter of spherical inorganic and organic particle expected to be completely removed. Remember please, this is very important. Completely removed in this tank are calculated. Assume that Stokes law is valid, is applicable, and which of the following options is and are correct? Maybe one or two options will be correct. The specific gravity of the inorganic particle is given 2.65, and the specific gravity of organic particle दिया हुआ है 1.2, and acceleration due to gravity दिया हुआ है 9.81, and kinematic viscosity also it is given 1 into 10 to the power minus 6 meters square per second. So here we need to find out the minimum diameter of your organic particle and inorganic particle, and options are given. So and Stokes law is valid very. So you know already the what will be the Stokes law. So क्या होता है स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ फर्स्ट आपके पास. सो v is equal to vs settling velocity is equal to formula है g rho s minus rho d square divided by 18 म्यू. अब क्योंकि आंसर में अपने को क्या दिया हुआ है, g दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो हम इस टर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं. तो क्या करेंगे भाई, सो g और रो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे. तो रो s डिवाइड बाई रो माइनस 1 डी स्क्वायर म्यू 18 म्यू. सो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे g and this rho and mu will be rho by mu by rho, so kinematic viscosity 18 mu, and this rho s by rho is nothing but your g minus 1 divided into d square. So this will be your, and what will be the d here? From here you can write very easily, d will be your 18 mu vs divided by rho g minus 1, and because it is square, so whole. So this will be the formula of d. Now here very important question, you have everything but you don't have this vs value. So how you will calculate this vs? This is very important. So you have the rectangular tank, remember, you have rectangular tank. In the question is very clearly written rectangular tank, and for complete removal, so this will be your width of the tank, and this will be this is the width of the tank. The figure is not very clear, so just for your understanding I just draw this tank. So this will be your width of the tank, this is your inlet, this will be your outlet, and this is your length of the tank, this is your length, and this will be will be the height of the tank, h. Now, so surface overflow rate in the question is given. Surface overflow rate is given SOR, not F. SOR is given 45 meter cube per meter per day. So यहाँ पे what will be the critical condition? अगर आपको completely remove करना है पार्टिकल को, तो SOR is equal to your VS. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मैं ये क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पे आऊंगा. जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो स्किप कर देना वीडियो, जिसको नहीं पता है वो फाइनल फुल तक देखना, ठीक है. तो SOR and VS. Now, so what will be your VS? So now VS is surface overflow rate. That is your 45 meter cube per meter square per day. So this is nothing but 45 divided by 24 into 60 into 60, because meter cube and meter square will cancel out, so meter per second. So this will be your 5.208 into 10 to the power minus 4 meter per second. So now you can calculate very easily D first calculate inorganic. So this will be your 80 into mu 1 is to 10 to the power minus 6 into 5 point Vs 208 into 10 to the power minus 4 divided by this division is Z 9.81 2.65 minus 1. So this will be your final answer 2.4 10 to the power minus 5 meter. So this will be your 24 micrometer. Similarly for organic, what will be the for organic? For organic it will be 18 into 10 to the power minus 6 into 5.208 into 10 to the power minus 4. Here 1 is to 10 to the power minus 6, but just I have written 9.81 and 1.2 minus 1. So this will be your 1 minus or 6.9 into 10 to the power minus 5 meter. So the finally will be 69 micrometer. So here option A and B is correct for this question. So how we will calculate? So this is all. Now let us, if अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता है क्यों मैंने ये लिया, ये कंडीशन मैंने क्यों लिया, SOR VS मैंने क्यों लिया, अगर किसी को पता है तो वीडियो स्किप कर सकता है यहाँ से, अगर किसी को नहीं पता है तो वो फॉलो करे यहाँ से वीडियो देखे क्यों क्यों इक्वल टू लिया हमने. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा याद रहेगा. अच्छा देखिए, अब मैं वेरी सिंपल तरीके से बताता हूँ. नाउ लेट अस फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि मैंने कैसे ले लिया VS इज इक्वल टू SOR. सो आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, जिसमें क्या है कि अब पानी इनलेट हो रहा है,
और यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। पानी इन हो रहा है और आउट हो रहा है, पानी इन हो रहा है और आउट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, एक इन है आपके पास, इनलेट है, और एक आउटलेट है। ये आपका ये आपका लेंथ है इस टैंक का, ये लेंथ है, और ये आपका डेप्थ है यहाँ पे, ठीक है। ये डेप्थ है h। अच्छा, पार्टिकल को अगर इसके पानी के साथ में कोई पार्टिकल एंट्री कर रहा है तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम है, मैं ले लिया कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है th, और इसको यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम लग रहा है ts। मैंने ts मान लिया। तो टाइम इन सेटलिंग एंड टाइम फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, th है। अच्छा, पार्टिकल कब सेटल करेगा, मान लीजिए पार्टिकल कब सेटल करेगा, जब हमारा ts क्या हो, जब ts क्या हो बताइए, ts जब छोटा हो, ग्रेटर और इक्वल हो th से, th यहाँ पे लिखना चाहूंगा मैं, th, ठीक है। क्यों, मान लीजिए ये th जाने में इसको लग रहा है 10 सेकंड, ठीक है, और इसको पानी जो पार्टिकल है उसको ऊपर से बॉटम तक आने में लग रहा है 5 सेकंड, तो सेटल हो जाएगा अच्छे से। अगर इसको मान लीजिए लग गया 15 सेकंड और इसको 10 सेकंड लग रहा तो नहीं सेटल होगा, क्योंकि 10 सेकंड में तो बाहर चला जाएगा, 15 सेकंड में सेटल कहाँ होगा। तो ये क्या है कि आपको कम टाइम लग रहा है, अगर टी एस आपका कम है और इक्वल है, इक्वल भी है तो यहाँ तक आ जाते सेटल हो जाएगा, अगर इक्वल भी है तो आपका सेटलिंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो अभी देखिए हम क्या करते हैं, आप देखिए इसमें क्या आ गई, दो टाइप का वेलोसिटी आ गया, एक तो आपका डाउनवर्ड वेलोसिटी, एक आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक आपका सेटलिंग वेलोसिटी। तो सेटलिंग वेलोसिटी, अब देखिए टीएस किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि टीएस आपका क्या है, डाउनवर्ड आने में टाइम जो है, तो डाउनवर्ड वाला वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट योर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है वीएस के थ्रू, अगर वीएस आप लिखना चाहेंगे कितना एच, टाइम कितना टीएस, सो टीएस क्या हो जाएगा आपका एच बाई वीएस, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर लेस देन इक्वल टू टी एच, क्या है आपके पास टी एच क्या है, ये अब वी, अगर आप वी एच लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, टाइम डिस्टेंस बाय टाइम अगेन, तो डिस्टेंस कितना वी एच को कितना डिस्टेंस एल, टाइम कितना टी एच, सो यहाँ से टी एच आप लिख सकते हैं एल बाई वी एच, टी एच आप लिख सकते हैं एल बाई वी एच, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट है, एंड वी एच को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, अगर आपके पास डिस्चार्ज दिया हुआ है, वी एच को क्या लिख सकते हैं, वी एच को अगर आपके पास डिस्चार्ज क्यू है, तो अगर आपके पास क्यू डिस्चार्ज है तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है आपका, और डिस्चार्ज क्या होता है आपका, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिमेंबर प्लीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। सो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एरिया डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसके लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका एच, और जो भी विड्थ होगा टैंक का, ठीक है, जो भी विड्थ होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई बी इंटू एच, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, वी एच इज इक्वल टू, सो टी एच आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी एच एल डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई बी एच, सो यहाँ पे फाइनली आप लिख सकते हैं एल डिवाइड बाई क्यू बी एच। सो यहाँ से आप एक चीज और कर लीजिए, अब यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ, एच डिवाइड बाई वी एस लेस देन इक्वल टू एल बी एच डिवाइड बाई क्यू। अच्छा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो वी एस आपके पास क्या बचेगा, वी एस क्यू बाई एल बी, और एल बी क्या है आपका, देखिए ये आपका एल है लेंथ, और बी क्या है विड्थ, बी क्या है इसका, वी क्या है टैंक का विड्थ है, बी क्या है टैंक का विड्थ है ये वाला ऊपर का, और ये लेंथ है। सो ये क्या है, सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, और इसी को हम बोलते हैं एस ओ आर, सरफेस ओवरफ्लो रेट, इसी को बोलते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। देखिए ये क्या होगा, ये हो गया मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर मीटर, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, और मीटर क्यूब डे लिख सकते हैं, या मीटर क्यूब पर सेकंड लिख सकते हैं, व्हाटएवर, एंड मीटर स्क्वायर, और इसको आप मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे भी लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं, चाहे जो भी मर्जी करें, तो यही सरफेस ओवरफ्लो रेट है। तो देखिए, अच्छा ये क्या है, ये कंडीशन हम क्या लेके चले थे, ये कंडीशन लेके चले थे कि आपका पार्टिकल कब रिमूव होगा, देखिए आप पार्टिकल कब रिमूव होगा, जब आपका टाइम क्या होगा, ग्रेटर टाइम जब छोटा होगा हॉरिजॉन्टल वाले से सेटलिंग का। तो ये करते करते हमारे पास क्या कंडीशन आ गया, ये यहाँ पे वैल्यू पुट किया, ये हमारे पास कंडीशन आ गया कि जब आपका एस ओ आर लेस देन और इक्वल टू होगा वी एस से, तब आपका पार्टिकल सेटल होगा, ठीक है। देखिए अब एस ओ आर क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये मीटर मीटर कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज बाई एरिया, डिस्चार्ज बाई एरिया मतलब क्या, वेलोसिटी, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब अगर इतना वेलोसिटी है तो पार्टिकल सेटल हो जाएगा, इसको क्रिटिकल कंडीशन बोल सकते हैं क्या। सो लिमिटिंग कंडीशन क्या होगा, एक मिनिमम कंडीशन क्या होगा, मिनिमम कंडीशन की पार्टिकल सेटल हो जाए, मिनिमम कंडीशन यही होगा कि आपका एस ओ आर एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए किसी भी पार्टिकल के लिए, एस ओ आर आपका इक्वल होना चाहिए पार्टिकल वेलोसिटी से, तब आपका वो पार्टिकल सेटल होगा, ये मिनिमम कंडीशन हो गया। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में मैं इसीलिए यहाँ पे लिया हूँ एस ओ आर इज इक्वल टू वी एस, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये कंडीशन लेते हैं, एस ओ आर को इक्वल टू वी एस क्यों लेते हैं मिनिमम सेटलिंग कराने के लिए। अच्छा,
तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि क्यों हमने लिया, ये मिनिमम कंडीशन हो गया। एक चीज और यहाँ पे आप देखेंगे अगर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डेप्थ आपका यहाँ पे हमने ये देखा तो डेप्थ कैंसल आउट हो गया दोनों साइड से। सो जो ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ना कि डेप्थ पे। टैंक के डेप्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके सरफेस एरिया पे, नॉट डेप्थ। ये इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया यहाँ पर अच्छे से लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से मतलब इस पे राइटिंग नहीं हो पा रही है, तो लेकिन समझिए आप चीजों को, सुन के अच्छे से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये रीजनिंग था कि मैं जो कंसीडर किया यहाँ पे सरफेस ओवरफ्लो रेट क्यों कंसीडर किया इस क्वेश्चन के लिए। सो फाइनली कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहीं पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिमेंबर ऑलवेज। सो थैंक यू।